Today, for class 6, we are going to study chapter 2 components of food. So जो भी फूड आप खा रहे हैं उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Without food, we cannot live. Food gives us energy, food builds muscles, and food also helps our body to fight against diseases. So these components of food are called nutrients. So different food items contain some components which are needed by our body. These are called nutrients. There are mainly 6 nutrients in food, which are carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Besides them, food also contains rough phase. What is rough phase? Rough phase are fibers, dietary fibers, which help in removing undigested food from the body, and water. So you can see in this figure the main components: carbohydrates, proteins, fats, water. You will note down these components in your rough notebook. Okay, so one by one we will take all these nutrients. First of all, carbohydrates. Carbohydrates, you can say, is the most important nutrients because carbohydrate gives energy to our body. हमें वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, मेंटल और फिजिकल वर्क, उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम carbohydrates. Carbohydrates is a nutrient of the food that gives energy. And what are the different foods which give us carbohydrates? Look at these foods. What are those? These are chapatis, potatoes, right? Grains. So carbohydrate we mainly gain from grains like wheat, rice, maize, bajra. That is why we include roti or chapati in our daily diet because it gives us carbohydrates. इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है. सो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मस्ट फूड इन आवर डेली लाइफ. अगर आप अपनी डेली के खाने में इस फूड को इंक्लूड नहीं करते हो देन योर बॉडी will not have energy to work. Another important nutrient is fats. So what are fats? Fats also provide energy to our body, and actually it provides more energy than carbohydrates. But the difference is कि हमारी जो बॉडी है उसकी प्रेफरेंस होती है कार्बोहाइड्रेट्स. पहले कार्बोहाइड्रेट से बॉडी एनर्जी लेगी. After carbohydrates, it starts gaining energy from fats. और फैट्स के सोर्सेज यू नो वेरी वेल. ऑयली जो सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयली फूड होता है, ऑयल, घी, बटर, चीज़, ओके, एंड एग ऑल्सो हैज़ हाई अमाउंट ऑफ फैट. मीट एंड बिसाइड्स जो नट होते हैं, मेवे होते हैं, उनमें भी बहुत फैट्स होता है. ठीक है, यू कैन सी दिस फिगर्स, राइट. Saturated fats. So saturated fats are good for our body and these are included in butter, cheese, milk, ice cream, etc. Repair of the body. And proteins के sources, main sources हैं pulses. जो दालें होती हैं, you can see this diagram, there are a lot of pulses. Also peas, beans, egg and cheese. एग में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, चीज़ में भी प्रोटीन होता है. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज सोर्सेस एंड यू मस्ट इंक्लूड पल्सेस एंड प्रोटीन सोर्सेस इन योर डाइट. क्योंकि अगर
आपके खाने में प्रोटीन नहीं होगा, अगर आप प्रोटीन वाला फूड नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी वीक रह जाएगी, मसल्स ग्रो नहीं करेंगे। विटामिन्स are also important for our body. There are various kinds of vitamins and they have various functions. Vitamins have many multi functions. So general function is they protect our body from diseases. Vitamins जो हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं हमारी बॉडी की और किसी भी डिजीज़ से हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारी आइज़, बोन्स, टीथ इन सबको भी हेल्दी रखते हैं। ओके, so there are various kinds of vitamins. You can see vitamin A, vitamin B, vitamin C and vitamin D. Okay, so vitamin A जो होता है that is important for our eyes. हमारी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए जो है विटामिन ए जो प्रेजेंट होता है वो हरी सब्जियों में, दूध में, गाजर में, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, कैरेट, पम्पकिन, लीफी वेजिटेबल्स. That is why we should eat this food. Vitamin B. Vitamin B keeps our body strong and it is present in vegetables, fruits, pulses. Okay. Vitamin C. Vitamin C is good for our teeth and gums. And this is present in लेमन, ऑरेंज, जो खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टोमेटो, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होती है। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए, जो हमारी हड्डियां होती हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है और ये मिल्क में, बटर में, एग में, फिश में, इन सब में प्रेजेंट होता है। ओके, आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। सोर्सेज ऑफ विटामिन. विटामिन ए कम्स फ्रॉम animal sources as eggs, meat. Okay, बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए का ही प्रिकर्सर होता है, दैट कम्स फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम है थायमिन, दैट इज फाउंड इन सीरियल्स, ब्रेड्स. ओके, विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उन सब में होता है. विटामिन डी हमें जो है सन से भी मिलता है. द बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज टू द सन. सो यू कैन सी हाउ मच इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर फॉर आवर bodies. They need in less quantity, they may be needed in less quantity, but they are very important. Minerals. What are minerals? Minerals are some basic elements which help to maintain good health. Minerals have different functions. Main minerals, most useful minerals are iodine, phosphorus, iron and calcium. So iodine is useful, iodine is important for मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म होती है जो भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, प्रोसेसेस हो रही हैं. ओके, एंड सो आयोडीन हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है, जो हमारा थ्रोट है, जो गला है, उसमें एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड होती है. दैट थायराइड ग्लैंड, THYROID, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी की जो भी प्रोसेसेस होती हैं उसके लिए. ठीक है, सो आयोडीन इज important for functioning of thyroid. Okay, and iodine is present in fish and green vegetables and iodized salt. Okay, phosphorus is good for our bones, health of bones, and it is present in milk, fruits, etc. आयरन, देखिए जो आपका ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन एक कंपोनेंट होता है. हीमोग्लोबिन से ही ब्लड जो है, ब्लड में जो है ऑक्सीजन अटैच हो पाती है. सो आयरन इज इम्पोर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर ब्लड. ठीक है, आयरन हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड एंड इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. कैल्शियम इज गुड फॉर बोन्स एंड इट इज प्रेजेंट इन मिल्क, एग, चीज. तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे फूड हैं जिनमें हर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जैसे कि
मिल्क है, मिल्क को कंप्लीट फूड बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, फ्रूट्स में भी काफ़ी कुछ होता है, मिल्क, फ्रूट्स, सो वी शुड इंक्लूड ऑल दीज इन आवर डाइट। ओके, डाइटरी फाइबर्स, रफेज। देखिए फाइबर्स जो हैं वो हमें दालों से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स से मिलते हैं, बट दे डू नॉट गेट डाइजेस्टेड, इनका डाइजेशन नहीं होता है, बट दे हेल्प, जो बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने में ये फाइबर्स हेल्प करते हैं। ओके, एंड फूड सोर्सेज ऑफ फाइबर इंक्लूड व्हीट, ओके, सीरियल्स, पल्सेस। ठीक है, वाटर के बारे में सभी जानते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक आपने पढ़े, ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा बॉडी में तो वो न्यूट्रिएंट्स काम नहीं कर पाएंगे। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और जो वेस्ट है उसको भी बाहर निकालने में वाटर हेल्प करता है। ठीक है, एंड वाटर तो हर फूड में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, बैलेंस्ड डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो। बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट विच हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स that our body needs in right quantities. Okay, so if we do not take balanced diet we will get deficiency diseases. What are deficiency diseases? Deficiency means होता है, deficiency means कमी। तो अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, उससे जो डिजीज़ होगी उससे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे। So we will study about some deficiency diseases. Okay, diseases caused due to lack means कमी of nutrients for a long time। अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट काफ़ी लंबे टाइम से नहीं ले रहे हैं तो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम हर न्यूट्रिएंट को डेली लें, लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक अगर एक न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं जा रहा है तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा उससे। ठीक है, अगर आप प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, अपने फूड में इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो उससे एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्वाशिरकोर। ओके, सो थिंक अबाउट इट कि प्रोटीन्स अगर नहीं होंगे बॉडी में तो क्या होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए। प्रोटीन्स हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग मसल्स। ओके, सो प्रोटीन नहीं होगा तो ग्रोथ बॉडी की रुक जाएगी। ओके, और हेयर और स्किन का कलर है वो भी फेड हो जाएगा, और भी बहुत सी डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो प्रोटीन से जो मेन डिजीज़ होती है दैट इज़ क्वाशिरकोर। ओके, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है तो उससे डिजीज़ होती है मरस्मस, MARASMUS, मरस्मस। ठीक है, सो उससे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, एकदम बॉडी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वाशिरकोर और मरस्मस डिजीज़ हैं, ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो जाती हैं। ओके, और डिजीज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के बारे में आपने पढ़ा था, तो इस टेबल को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। विटामिन ए जैसे कि आइज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इफ़ वी डू नॉट टेक विटामिन ए तो हमें रात के टाइम जो है विज़न में लॉस रहेगा। विटामिन B1 बेरी जिसमें मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं। सी स्कर्वी, तो आपने पढ़ा था जो विटामिन सी होता है दैट इज़ हेल्दी फॉर आवर गम्स और टीथ। तो स्कर्वी में जो है गम्स जो हैं ब्लीड करने लगते हैं। ओके, और जो वुंड्स बॉडी में हो जाते हैं उसकी हीलिंग में भी बहुत टाइम लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स। विटामिन डी यू नो अबाउट बोन्स, तो बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। कैल्शियम बोन्स और टूथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आयोडीन की कमी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। तो आपको अभी पता है कि आयोडीन का फंक्शन क्या है। अभी सोचिए, अभी मैंने बताया था आपको कि आयोडीन इज़ यूज़फुल फॉर थायराइड ग्लैंड जो कि हमारी गले में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा और नेक में, थ्रोट में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन। ओके, एंड आयरन का जो यूज़ है फॉर्मेशन ऑफ RBCs ब्लड, सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एनीमिया इज
अ डिजीज़, जिसमें बहुत वीकनेस आ जाती है, ब्लड फॉर्मेशन भी कम होता है. सो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एनीमिया, अ डिजीज़ अकर्स. तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन और उनके सोर्सेस, आपको ये दो चीज़ें लर्न करनी है, नोट करनी है. ओके. इसके बाद वी विल स्टडी अबाउट सम टेस्ट्स कि आपके फूड में ये न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे. फॉर एग्जांपल, आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन है या नहीं, फैट्स हैं या नहीं. ठीक है. तो इज़ देयर एनी मेथड, इज़ देयर एनी एक्टिविटी बाय विच वी कैन चेक? यस, देयर आर. कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे फूड में है या नहीं. देखिए, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का स्टार्च होता है. ठीक है. स्टार्च जो है काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स होता है. कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से थोड़ा सिंपल होता है, थोड़ा छोटा होता है. ठीक है. बट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही फॉर्म है. ओके. सो इस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप स्टार्च के अंदर आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है, जब भी आप स्टार्च के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हो तो कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है. ओके. स्टार्च प्लस आयोडीन कैसा कलर देता है? ब्लू और ब्लैक. ठीक है. तो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल वी कैन चेक. अगर खाने में स्टार्च होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा. अगर फूड में स्टार्च नहीं है तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक नहीं होगा. ओके. सो ये चीज़ हम लैब में कर सकते हैं. वी विल टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, उसको हम अच्छे से पीस लेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे. उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की डालेंगे. देन कलर चेंजेस टू ब्लू ब्लैक. इट मीन्स इट कंटेन्स स्टार्च. ओके. सिमिलरली हम प्रोटीन्स का भी टेस्ट कर सकते हैं. इसमें क्या प्रिंसिपल है, क्या फैक्ट हम यूज़ करते हैं? देखिए, प्रोटीन्स में जब भी हम कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी आप सिर्फ कॉपर सल्फेट याद रखिए, कॉपर सल्फेट. ठीक है. और एक होता है कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं. ठीक है. तो अभी आप कॉस्टिक सोडा भी याद रख सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो प्रोटीन्स में जब भी कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को ऐड करते हैं तो कलर जो हो जाता है वो हो जाता है वॉयलेट. ठीक है. तो अगर फूड के अंदर प्रोटीन है और उसमें हम कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं तो कलर वॉयलेट हो जाएगा. अगर फूड के अंदर प्रोटीन नहीं है तो कलर वॉयलेट नहीं आएगा. तो इस एक्टिविटी में हम ये करेंगे कि एक फूड आइटम लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में लाएंगे, उसका एक पेस्ट बनाएंगे. ठीक है. और उसके अंदर वाटर डालकर एक सॉल्यूशन बना देंगे उसका, फूड का. उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालेंगे. कलर हो जाएगा वॉयलेट, विच इम्प्लाइज फूड कंटेन्स प्रोटीन्स. ऑल राइट. So that is how we can test for proteins. फैट्स का टेस्ट कैसे करेंगे? फैट्स का टेस्ट बहुत इजी है. इसमें आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम है आपका, उसको एक पेपर से कवर करना है और उसको थोड़ा क्रश करना है, लेकिन पेपर फटना नहीं चाहिए. और सिंपली आप फूड को थोड़ा पेपर से रब करेंगे. ठीक है. जो भी फूड आइटम है उसको पेपर से थोड़ा रब करेंगे. अगर पेपर ऑयली हो जाता है तो सिंपल है कि उसके अंदर फैट है. ठीक है. ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है. ऑल राइट. सो ये चैप्टर यू कैन सी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इजी भी है. आप इसको जो नोट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ेंगे, लर्न करेंगे. ओके. और कोई भी डाउट है आपको तो हम वो डाउट क्लास में क्लियर कर लेंगे. तो इस पूरे चैप्टर को, ये जो पीपीटी है, इसको आप पढ़ेंगे और कुछ 1 लाइन में कुछ नोट्स बनाएंगे रफ नोटबुक में.